Assalamu alaikum, welcome back. So we are resuming our session 2 and this session 2 will be resumed by a panel discussion. अच्छा, ये पैनल डिस्कशन एक यूनिक सी पैनल डिस्कशन है. यहाँ पर जितने पैनलिस्ट आपको नज़र आ रहे हैं किसी के बाल सफ़ेद नहीं हैं. एंड दिस मेक इट्स यूनिक. द पैनल टाइटल इज़ बियॉन्ड द हैट. बियॉन्ड द हैट मीन्स they are the youngsters. They will be telling you the Gen Z problems, because most of the times when we invite some panelists, they used to talk about the landscape, they used to talk about how the global ecosystem is evolving, where we are heading towards, but these are the problems that haven't been addressed anywhere. Such questions which has never been heard in any boardroom, any meeting room, any lobby or any classroom. Questions like तुम्हारा वीज़ा इंटरव्यू कब है, या questions like I am at this company but I have applied at some company and I have got selected and now I am going to tell my manager that tomorrow is my last date. So these type of questions, these type of roadblocks that keeps youngsters away from their managers, that they don't talk about their problems, this type of taboo will be broken in this particular panel discussion. So all of these panelists, they are being advised to be honest. आपने किसी को अपने सीनियर को इम्प्रेस नहीं करना. यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं किसी को इम्प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है. CV परफेक्ट आंसर नहीं चाहिए, रिहर्स्ड आंसर्स नहीं चाहिए. जस्ट बी बोल्ड, बी ऑनेस्ट एंड बी अ वॉइस ऑफ Gen Z. All of these panelists are the youngsters except for Dr. Irfan, and we have actually tried our best to bring the youngsters from all around the globe. ये सिर्फ लाहौर की प्रॉब्लम या इस्लामाबाद की प्रॉब्लम ना लगे. We have people from GK, we have people from Islamabad NCDC, we have people from Government Institute as well from NICOP, क्योंकि गवर्नमेंट में भी ये मसला आता रहता है. आप लोग सरकारी नौकरी तो कर रहे होते हैं लेकिन पता लगता है कि सरकारी नौकरी वाले भी छोड़ के जा रहे हैं, और वो इस मोमेंट पे छोड़ के जाते हैं जब उनकी रिप्लेसमेंट भी नहीं होती. So just to bridge that gap, just to bridge that generation gap, we are going to address some questions. I will be asking some questions to the panelists and each panelist are requested to answer the question precisely in 1 or 2 minutes. मेरे पास सिर्फ 5 सवाल हैं. मैं वो 5 सवाल पाँचों लोगों से हर बार करूँगा और हर पैनलिस्ट के पास 1-2 मिनट्स होंगे. इस तरह हम लोग गपशप लगाएंगे कोई 25-30 मिनट की, एंड देन द हाउस विल बी ओपन. ऑडियंस, वी विल हैव सम क्वेश्चंस फ्रॉम द ऑडियंस एंड दिस इज़ हाउ वी आर गोइंग टू हैव अ पैनल बियॉन्ड द हैट. सो सबसे पहले ऑनेस्टी से स्टार्ट करते हैं. लेट्स बी ऑनेस्ट. जितने पैनलिस्ट यहाँ बैठे हुए हैं, आप लोगों ने एक जॉब पे होते हुए क्या कभी दूसरी जॉब पे अप्लाई किया? Obviously, yes. Always. Obviously, yes. Yeah, definitely yes. I think it would be a lie if any of us says no. You see, youngsters, इतना आसान होता है बस बोलना. जो आप छुपा के बैठे होते हैं ना, जो ऐसी कन्वर्सेशन जो कहीं नहीं हो रही होती, कि आप सिर्फ व्हाट्सएप के सीक्रेट ग्रुप में कर रहे होते हैं जिसमें 2-3 लोग होते हैं, उनको बता रहे होते हैं मैंने मैनेजर से छुट्टी के लिए अप्लाई किया है, लिखा मैंने सिक लीव है लेकिन मेरा वीज़ा इंटरव्यू है इस्लामाबाद में, तो मैं आज रात को जाऊँगा, सुबह जल्दी से इंटरव्यू दे के शाम को वापस आ जाऊँगा. सो वो वाली कन्वर्सेशन हो सकती है, मैनेजर से भी हो सकती है, सब सीनियर से भी हो सकती है. माई सेकेंड क्वेश्चन इज़, what are the roadblocks? How and why don't young engineers talk openly about their career anxieties? I will start with the youngest of them, Miss Ira. The fear of getting judged by your mentor, maybe, or not getting understood completely, or उसके बाद continue with that judgmental. I think conversation with your mentor should be developmental rather than judgmental. Or I'm not talking about all the mentors, obviously, but it should be a free conversation with your mentor. तो I guess ये anxiety नहीं होगी, और पहले से fears अपने और job interview and visa interview का पहले से बताया जा सकता है. Dr. Irfan. Yeah, thank you. I think the anxieties about switching the jobs is always over there, and as you mentioned previously, that there are constraints with everyone that वो छुट्टी नहीं ले सकते. But I think there is always a rush to कि मैं switch अपनी job कैसे करूँ.
So but my point is that constraints हर एक के unique होते हैं, तो उनको अगर listen किया जाए, they always have someone जिस पे trust किया जा सके, so that helps a lot in deciding what is good for that being. Thank you. ये असल में जवाब ना मिलीनियल्स वाला था, मेरे और आप जैसा। जो जेन जी है ना, उनको जॉब करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है कि स्विच कैसे करें या ना करें। ये सवाल जेन जी के माइंड में नहीं आते हैं। कहते हैं अच्छा भीतर पैसे मिल रहे हैं ना, आईफोन आ जाएगा अगले महीने, तो स्विच करते हैं। जी सर। अस्सलाम वालेकुम। तो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप इस तरह की कोई भी चीज़ मैनेजर अपने मेंटर के साथ करते हैं, भाई आप अपनी कंपनी के साथ डिसलॉयल हैं, ठीक है, जो कि ठीक नहीं है। इफ़ द कंपनी आपको कंसर्न्स को सुन रही है और उसको एड्रेस कर रही है, जेन जी, जेन अल्फ़ा जितने लोग वहाँ पे रुकेंगे और काम भी करेंगे। सिर्फ एक और चीज़ जो कि हम लोगों को यहाँ पे पैट्रियटिज़म का बोल के हम कह देते हैं, तो सिर्फ पर उसके पीछे वो सारी चीज़ें चाहिए जो कि बाकी लोगों को या बाकी मुल्क में लोगों को सिर्फ पैट्रियटिज़म के पीछे उनको कंसर्न्स हैं, उनको एड्रेस किया जा रहा है। उनको वो सारी वैसिलिटी हैं जो कि इंजीनियर को जो कि कटिंग एज काम कर रहा है उसको मिलनी चाहिए। So, yeah. Being called disloyal is a big factor. Obviously, patriotism is another thing. We have Talha. Talha has come from Karachi all the way to from UIT MERD, and he will be talking about his side of problems. ओके सो मैं इनकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक करूंगा कि अगर आप एक कंपनी में जॉब करते हैं और अगर आप उनको बताने जाते हैं कि मैं वीज़ा अप्लाई करने जा रहा हूं दूसरी जगह पे बाहर जाने के लिए, कुछ भी करने के लिए, तो जाहिर सी बात है आपको एक डिसलॉयल का टैग लग जाता है। वो आपको हर किस्म से, हर तरीके से आपको रोकना चाहते हैं, बट वो रोकना पहले नहीं चाह रहे होते। जब आप बोलते हो कि मैं जाना चाह रहा हूँ, तब वो अपनी चेंजेस या अपनी ऑफर्स या अपनी जो भी चीज़ वो आपको देने जा रहे हैं वो चेंज करते हैं उस रन टाइम पे। तो ये चाहिए कि वो पहले अगर चेंज कर लेते तो ये जो जेन ज़ी का जो एम्प्लॉय है वो छोड़ के ही नहीं जाता आपको। तो मोस्टली ऐसा हो रहा होता है कि अगर मैं छोड़ के जाना चाह रहा हूँ और फॉर एग्जांपल मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है, तो मैं यहाँ भी इस कंपनी में भी सर्वाइव नहीं कर सकता। आप मुझे लॉयल डिसलॉयल कहेंगे या कुछ भी कोई भी टैग इस तरह का मुझे लग सकता है। तो ये बहुत डिफिकल्टी फिर फेस करनी पड़ सकती है इन केस अगर आप वो चीज़ अचीव ना कर पाए जिसके लिए आप जा रहे थे और जिसके लिए आपने डिस्कशन की थी अपने मेंटोर से या अपने मैनेजर से। तो प्रोबेबली ये होना चाहिए मेंटोर्स की तरफ से कि भाई वो अंडरस्टैंड करें, क्योंकि जेन ज़ी जो है वो इट्स नॉट लाइक अ मिलीनियल और द जेन एक्स। वो ये नहीं समझते कि मुझे यहाँ पे अरसे तक काम करना है, वो समझते हैं मुझे 6 महीने काम करना है और अपनी फ्लेक्सिबिलिटी से काम करना है। बिकॉज मैं कुछ स्टूडेंट से मिल रहा होता हूँ, वो ये चाह रहे होते हैं कि भाई मैं सुबह नहीं आऊँगा, मैं दोपहर में आऊँगा। अब हम उनको फोर्स भी नहीं कर सकते, फोर्स करते हैं वो दोपहर सुबह आएंगे, सोते रहेंगे, बैठे रहेंगे, कोई काम नहीं कर पाएंगे। तो अब जो जनरेशन जो चेंज आ गया है, तो हमें उस हिसाब से अपने आप को डाइवर्ट करना पड़ेगा। या तो हम उनके फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करें या उनके ऊपर जो मैनेजर्स या लीड्स अप्लाई कर रहे हैं वो भी जेन जी के ही हों, ना कि वो मिलीनियल्स हों या जेन एक्स हों, ताकि वही उसको बेटर अंडरस्टैंड कर सके। तो ये जनरेशनल गैप जो है इसको थोड़ा सा रिड्यूस करना पड़ेगा, या इस तरह की कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होने चाहिए जो जनरेशन एक्स को बताया जाए या मिलीनियल्स को बताया जाए कि जेन जी किस तरह सोच रहे हैं। बिकॉज जेन जी भी जो बनी है वो एक खास रिसर्च की बुनियाद पर बनी है कि भाई जेन जी क्यों कहलाती है, उनका माइंडसेट से माइंडसेट डिफरेंट है। तो उस माइंडसेट के हिसाब से हमें मिलीनियल्स को या जेन एक्स को अपनी एक ट्रेनिंग करनी चाहिए और जेन जी को भी ट्रेनिंग देनी चाहिए कि भाई हाउ मिलीनियल्स थिंक और हाउ जेन एक्स थिंक्स। Thank you. By the way, just a side question, how many of you knows Gen Z, Gen X, millennial terms? पीछे वालों को तो पता होगा। ओ सर, वाह। So सारी बातें ठीक हैं। Fear of being labeled as a disloyal to a company and generational gap. But coming to your original question, why can't we have these discussions with our mentor? So I think a term mentor needs to be defined here. So typically जब हम mentor की बात करते हैं तो we look towards our immediate senior, which is by definition wrong, because your senior is also the one evaluating you. जब भी आप उसको जाके बताएंगे मेरा फलां जगह पे इंटरव्यू है, I have applied to that place, I am going to that PhD, his first concern be who is going to replace him or her. So you cannot make a mentor, I mean there are exceptions, but
your immediate senior should not be your mentor. So I will give a brief definition. Actually, this definition is by our senior, Dr. Nasir. You have heard his talk before. So once I was traveling with him, he asked me actually, so do you know who should be your mentor? What are the three or some qualifications that your mentor needs to have? So, and among those calculators, sorry sir, I don't remember all of those, but the one quality that he mentioned that you should look in your mentor is that he should be the same person working in your field for at least 15 years, so that he knows the past, knows the present, he can predict somewhat the future, and he can give you the best advice, and is not your immediate senior. So that term of mentor should need to be defined here, and it should not, in my opinion, be your immediate senior. So I think if we can have those discussions in somewhat limited or somewhat you could constrained manner, but not just with your immediate senior. I would like to add something. मेरे ख्याल में one of the reasons ये भी है कि maybe the heads with talking with their fellow heads कि these are my employees. Just don't hire my employees and just let them be with myself for this period of time, and then just you can take them because I need them more right now. So I think this is one of the reasons. Okay, you cannot trust your mentor by telling him that I'm applying that particular company. इसमें मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहूँगा. कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में मैं ये नहीं समझता कि या जेंजी ऐसा नहीं समझती कि जो मेंटोर है वो मेरा इट्स लाइक अ फैमिली टू मी. अकेडमी इंडस्ट्री में या अगर आप रिसर्च लैब में काम कर रहे हैं, आप वहाँ तो ऐसा समझ सकते हैं बिकॉज आपका टीचर होता है, वही आपका मेंटोर होता है, वही आपको पुश कर रहा होता है, वो हमेशा चाह रहा होता है कि मैं उसके लिए एक लैडर बनूँ, उसको आगे की तरफ पुश करूँ. बट इन टर्म्स ऑफ कॉर्पोरेट वो आपको ऐसा नहीं समझते कि इट्स लाइक योर फैमिली. सो वहाँ पे मेंटोर की डेफिनेशन काफ़ी तब्दील हो जाती है. I think for the just I would. मैं अभी आता हूँ इस सवाल पे भी वापस आता हूँ. इसको ना एक और तरह से एड्रेस करते हैं यहाँ. एक और एंगल भी है इसी पैनल का, एक और एंगल भी है. दूसरा एंगल ये है कि अब जितने भी यंगस्टर्स हैं, एक कंपनी उनको पसंद नहीं आई, दूसरी कंपनी किसी भी XYZ कंपनी में अप्लाई किया जो कि उनके लिए फॉर फ्यूचर बेहतर नहीं है. उस कंपनी में वो उस तरह से ग्रूम नहीं हो सकेंगे जिस तरह वो कंपनी ABC में है. तो हु वुड गाइड दोज जूनियर्स के कहाँ अप्लाई किया जाए? लोग कहते हैं PhD करनी है, ठीक है, कोई भी फजूल सी यूनिवर्सिटी पकड़ी जिसकी रैंकिंग भी कोई नहीं है, बस बाहर का टैग लगा हुआ है, ठप्पा लगा के वीज़ा लगवा के चले गए. सो हाउ कैन वी डेवलप सच अ कन्वर्सेशन इन सम एनवायरनमेंट दैट वी शुड टॉक अबाउट टू द जूनियर्स कि ठीक है, तुम जा रहे हो, तुम्हें कंपनी पसंद नहीं आई, ये वाले बाबा जी पसंद नहीं आए, किसी और बाबा जी के साथ काम करना है, तो जस्ट दिस इज़ द पाथवे फॉर यू, अप्लाई फॉर अ बेटर जॉब फॉर योर ओन बेटरमेंट. सो आई विल रिलेट दैट क्वेश्चन कि कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ किस तरह ढूंढनी चाहिए विद द करियर पाथ दैट यू थिंक यंगस्टर्स शुड चूज. फर्स्ट ऑफ ऑल एम्प्लॉई अपने मेंटोर से जब डिस्कस करेगा कि मैं कहीं और मूव करना चाहता हूँ, मैं आगे अपॉर्चुनिटीज़ देख रहा हूँ, तो फिर मेंटोर गाइड करेगा. और मेंटोर भी उसको अपने बेनिफिट को छोड़ के कि हाँ मेरे पास एक हॉलो स्पेस क्रिएट हो जाएगी, थिंकिंग अबाउट द एम्प्लॉय दैट ही नीड्स टू ग्रो नाउ, उसको फिर गाइड कर सकता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल द माइंडसेट नीड्स टू बी चेंज्ड. जैसे इन्होंने कहा कि एक फैमिली माइंडसेट जो है ना वो मेंटोर का और उसके एम्प्लॉई का जब क्रिएट होगा तब वो उसको प्रॉपर गाइडेंस देगा कि दिस PhD इज़ बेटर, आप इसकी तरफ जाओ, या यहाँ पे फॉर द सेक ऑफ से PR आप यहाँ पे ना चले जाओ. तो सबसे पहले ये माइंडसेट चेंज होगा. उसके बाद ऑब्वियसली जो हमारे सीनियर्स या हमारे मेंटोर्स या हेड्स होते हैं उनका एक्सपोजर होता है, उनकी PhDs पोस्ट डॉक्स होते हैं, फिर वो प्रॉपर गाइडेंस उनको प्रोवाइड कर सकते हैं टेकिंग इनटू कंसिडरेशन कि ये उनके एम्प्लॉई के लिए बेनिफिशियल है. So I believe that let's face it, कि employer के लिए of course it would be a disadvantage और उनके लिए एक मसला create हो जाता है when someone leaves. So that's a reality. तो उसको कैसे handle किया जाए, the discussion is all around the mentors. तो मेंटोर्स की थोड़ी सी डेफिनेशन भी सामने आ गई कि 10-15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए. तो आई वुड सजेस्ट और आई बिलीव कि उसको अगर हम थोड़ा सा फिक्स करें एंड क्या हमें वो बंदा गाइड कर सकता है कि जिसने 3-4 साल अब फील्ड में एक्सपीरियंस कर लिया, तो रादर दैन रिलाइंग ऑन दैट 10-15 ईयर्स वाला बाबा, we can take some advice from 3 to 4 years which is a little bit near to us. So I think that can help. अगर आपके mentors
लिस्ट में एक बाबा है तो 2-3-4 आपसे थोड़े से इमीडिएट सीनियर्स होने चाहिए, एंड देन एक्यूमुलेट दैट आइडिया और द सजेशंस, you would have a better advice for the career. Yeah. सो 10 to 15 ईयर्स जो एक्सपीरियंस है वो तो मुझे तो नहीं नज़र आया हमारी इंडस्ट्री के अंदर। वो तो यहाँ पे होते ही नहीं हैं, बाहर होते हैं। सो ये तो प्रोफेसर ये तो एक्सपीरियंस Professors. सो 10 to 15 जो ईयर्स का एक्सपीरियंस है वो ऐसा एक्सपीरियंस है जो कि पाकिस्तान में कम मिलता है, एंड दैट्स द बॉटलनेक जो कि हम फेस कर रहे हैं अभी हम लोगों की टेक इंडस्ट्री के अंदर। तो जो आपके अभी मेंटोर्स वो शायद 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस होगा उनका ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। सो आई थिंक जिनका 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस है दे अंडरस्टैंड ऑल दीज बॉटलनेक्स। अगर कोई एक यंग इंजीनियर आ रहा है वो भी कोई इतने बुजुर्ग नहीं होगा कि उनको इन चीज़ों का आइडिया नहीं होगा। दे नो ऑल द बॉटलनेक्स और उनको इन सब चीज़ों का पता। तो आई थिंक अगर वो अगर उनको भी पता है भाई कि अगर एक कोई भी एजेंसी का बच्चा है जिसने जाने का इरादा कर लिया, ठीक है, सो आई डोंट थिंक they can hold them back, ठीक है। तो if they can't hold them back then they can at least tell them what's better for them, ठीक है, so that they can make a better decision rather than making a worse decision जो कि जिसके बारे में उनको नॉलेज नहीं थी। तो वो अपने एक्सपीरियंस को यूज़ करते हुए एटलीस्ट उनको बेहतर गाइड कर सकते हैं भाई कि if there is a better opportunity for you, look for these things and look avoid these things. दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। कन्वर्सेशन होनी चाहिए। ये जब तक कन्वर्सेशन ब्रेक नहीं होगी, ये टैबू ब्रेक नहीं होगा, ये चीज़ें ठीक नहीं होंगी। अतल्हा। ओके, सो मैं कुछ इस तरह देखूंगा इस चीज़ को। जस्ट लाइक हमारी यूनिवर्सिटी में जब बच्चा ग्रेजुएट होने वाला होता है तो उसके लिए कैरियर काउंसलिंग सेशंस हो रहे होते हैं। तो व्हाई नॉट दिस टाइप ऑफ सेशंस इन द कॉर्पोरेट इंडस्ट्री? अगर एक स्टूडेंट है या एक एम्प्लॉई है वो नहीं डिस्कस कर पा रहा अपने मैनेजर से, क्यों ना मैनेजरियल साइड ऐसी कैरियर काउंसलिंग सेशन प्रोवाइड कर दें जिसमें वो बता दें कि भाई आप अपने कैरियर को इस तरह एक्सेल कर सकते हो और यहाँ जाके इस तरह से आप ये चीज़ अचीव कर सकते हो। लेकिन इसके बरक्स जब आप हमारी इंडस्ट्री में रोकोगे, हमारी कंपनी में रोकोगे, तो हम इसके कंपेरिजन में यही आपको बेनिफिट्स देंगे, तो आपका कैरियर यहाँ तक पहुँच जाएगा। अगर वो कंपेयर कर ले कि मैं जो खुद सोच रहा हूँ और जो मेरा मेंटोर मुझे बता रहा है क्या वाकई इसमें बेटर क्या है, उसके बाद उसके बच्चा अपने हिसाब से डिसीजन ले ले, या जो भी जेंजी का एम्प्लॉय वो डिसीजन ले ले, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर जेंजी नहीं डिस्कस कर पा रहा तो क्यों ना मैनेजरियल साइड उससे डिस्कस करे और उसको बताए कि भाई तुम्हारा कैरियर क्या है, तुम्हें क्या कैरियर चूज़ करना चाहिए, तुम्हें अपने कैरियर में किस तरफ जाना चाहिए, तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। So I would say I mean this sounds very good in terms of statements, but let's be honest, it is not practical. One company, manager of one company counseling for another company and advocating for the benefits of another company while at the same time motivating the candidate to remain in the same company. I mean that's not practical, but yes, to some extent, like you mentioned, I think the professors have mentioned that if you have one Baba in your contact list, you should have enough network that you should have 3 to 4 years, someone who is senior that has pursued maybe a PhD path, a career in industry, a career in local industry, a career in international industry. You should be connected with them and you should take their point of view too. I agree with this part that you should not, necessarily look for a 10-year gap to find a mentor, because generational gap, it used to be so that initially the generational gap used to come when there was a difference of 50 years, then that got 20 years, and I think now it's 4 to 5 years, because someone who is 5 years younger than me, he does not even use the same mobile apps as me. So this generation gap of 5 years, that is a realistic thing. So you should have some seniors from different walks of life that can provide you their perspectives, and the added benefit would be that they will not be biased towards a certain company. Again, my point is that your mentor should not be your immediate boss. एक्चुअली देयर इज़ अ डिलेमा। अभी सर ने बात की ना कि कॉन्टेक्ट्स होने चाहिए, उन कॉन्टेक्ट से कन्वर्सेशन होनी चाहिए। आजकल के स्टूडेंट्स के पास कॉन्टेक्ट्स हैं और कन्वर्सेशन किस टाइप की होती है? सर मैं मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, आपने LOR लिख के देना है, लेकिन किसी को बताना नहीं है, ना मेरे मैनेजर को ना मेरे बॉस को, किसी को नहीं बताना। मैं आपको लिंक शेयर करूँगा, आप LOR अपलोड कर दीजिएगा। सो चेंज द क्वेश्चन फर्स्ट। पहले ये पूछें कि मैं यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ अप्लाई करना बेहतर है या यहाँ अप्लाई करना बेहतर है। डोंट आस्क फॉर LOR डायरेक्टली कि मैंने यहाँ अप्लाई किया, आपके पास लिंक आ जाएगा, आज शाम को LOR अपलोड कर दीजिएगा। डोंट डू दैट। सो चेंज द क्वेश्चन, यू हैव द कॉन्टेक्ट्स बट चेंज योर क्वेश्चंस फर्स्ट। दैट्स हाउ कन्वर्सेशन शुड स्टार्ट।
ओके, सो माय लास्ट क्वेश्चन, अभी तक जितना भी एनालिसिस किया, तनकीद बराए तनकीद किया, तनकीद बराए तामीर किया, लेट्स प्लान सम एक्शंस. लेट्स सपोज इन अ हाइपोथेटिकल सिनेरियो यू आर गिवन फुल अथॉरिटी फॉर 6 months, maximum budget. What changes will you bring in your companies, in your industry, so that your juniors, your immediate juniors, when they will join your company, they will start growing inside the company instead of leaving it? What is your action plan? Okay. We can start from other way around. Okay, let me take the lead on that. So, I mean, this is a very good question, and actually gives me a perspective of what I would be doing once I maybe in future I'm sitting in the place of Dr. Nasir, that part, and someone like me sitting here. So one thing that I would do if I have the budget and the authority is that I will start. I mean, this is what happens here. One of our seniors mentioned that if you want to retain people, if you want to grow them inside in their own careers, in their own professions, give them the opportunity. Most of the time it happens that as managers, I'm a manager too, but what happens is that once an opportunity or some incentive or something comes, we try to hog it all to ourselves. We should disperse it. And that is something, that is the incentive, that is the growth environment that is created, that is perceived by the juniors कि हाँ हमारे लिए opportunity है, हम जो ऊपर से अगर कोई चीज़ आती है that trickle downs to us too. And I will make sure that each of my juniors knows what is the opportunity once he stays here for 3 to 4 years. What will be the benefits of that? Of course, there's going to be the adverse effects. There are going to be the downside. There are going to be cons. I will be open to them, and I am open to them once someone asks me, even from my own people. And there are people who ask that, sir, मुझे फलां जगह opportunity मिली है, and I want to leave NECOP and go there. This is a government job, and that is, but it pays higher. I asked them their context, and if the context aligns with their money in motivation, I say straight away, go for it, because that suits you, right? I mean, I'm in no position to give you a false advice, but I will tell you the benefits of remaining in this job. I will say that once you are 10 or 15 years down the road, what you will be able to achieve here. So, I mean, this is something that one-to-one interaction is what I would increase. Someone is feeling, because as someone mentioned here, each person has a different context, different set of constraints. I need to interact with them personally and understand their concern and then guide them accordingly. I think just be fair on that level. That should increase retention by a lot. मैं इनकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक करूँगा. और दूसरी चीज़, अगर जेंजी को मौका मिले कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करने का, तो वो कोशिश ये करेंगी कि जो भी उसकी पॉलिसीज़ बनाई जाएँ वो जेंजी को देख के ही बनाई जाएँ. बिकॉज जस्ट लाइक इफ़ यू टॉक अबाउट द मिलीनियल्स, वो एक जॉब पे लगते थे मोस्टली. अगर हम देखा जाए, वो अपनी उम्र एक ही जॉब में गुजार देते थे, वो हॉप नहीं करते थे मोस्टली. अगर देखा जाए तो जेंजीज जो हैं वो कंटिन्यूसली स्विचिंग करते रहते हैं, हर 6 महीने पे, अक्सर हर 2-3 महीने पे. या तो आप उनको लीगली बाउंड कर सकते हैं, 1 साल का बाउंड करते हैं तो वो रुक जाएंगे. दूसरी चीज़, जो भी पॉलिसीज़ बन रही हैं, फ्लेक्सिबल टाइम उस हिसाब से रखा जाए जो जेंजी की नेचर है. क्या पॉलिसीज बनाई जाए? यू आर द जेंजी. ओके, सो सबसे एक चीज़ जो मैं कंटिन्यूसली देखते हुए आ रहा हूँ मल्टीपल लोगों के साथ जो काम कर रहा हूँ, तो वो यही देख रहे हैं कि फ्लेक्सिबल टाइम. जब तक फ्लेक्सिबल टाइम उनको नहीं मिल रहा, उनकी प्रोडक्टिविटी लो है. वो जब चाहे काम कर सकें और जब चाहे ना काम करें. उनको सिर्फ डेडलाइन दे दी जाए, टाइम उनके ऊपर हो, जिस ड्यूरेशन में वो काम करें वो काम करके देते हैं. बिकॉज जनरली ये डिसिप्लिन के बिल्कुल खिलाफ है और बिल्कुल अपोजिट है डिसिप्लिन के. जनरली ऐसा नहीं होना चाहिए, बट अब की जो नेचर है और जेंजी की जो माइंडसेट है वो इसी तरह का है. अगर हमें काम करवाना है आगे की दुनिया में, तो हमें इसी तरह करवाना पड़ेगा, अदरवाइज हम इसी तरह स्टक रहेंगे. आई थिंक 2 लोगों ने बताया, अभी तक पैसों की बात नहीं आई, तो मैं ज़रा पैसों वाली साइड. देयर इज़ एन इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ मनी. तो एक चीज़ हम ये कर सकते हैं भाई कि रादर दैन गिविंग अ 30, 40, 50% रेस, जब एक बंदा हमारे पास रेजिग्नेशन लेटर लेके आता, तो उससे पहले हम उसके स्किल सेट को देखते हुए उसके लिए एक एम्पल अमाउंट ऑफ मनी रखें जो कि हम उसको पे कर सकें. उसके अलावा जहाँ तक बात है फ्लेक्सिबल टाइमिंग काफ़ी सारी कंपनीज़ के अंदर अभी इम्प्लीमेंट हुआ हुआ है. ठीक है, चलो देयर इज़ सर्टेन, उसमें आप कह सकते हैं कि
देयर इज़ सम लेवल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, बट जनरली काफ़ी सारी IT कंपनीज़ के अंदर अब फ्लेक्सिबल टाइमिंग इंप्लीमेंट हुआ हुआ है. सो सिर्फ फ्लेक्सिबल टाइमिंग इज़ नॉट द थिंग. आई थिंक जो मेनली यहाँ से मूव करने का फैक्टर हो रहा है वो यही है भाई के द इंजीनियर्स आर नॉट कॉम्पनसेटेड वेल इनफ फॉर देयर स्किल्स एज दे आर कॉम्पनसेटेड अब्रॉड. दैट इज़ वन ऑफ द कॉन्सेप्ट. और शायद पाकिस्तान के अंदर काम आने का वजह भी यही है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द कंपनी ओनर्स के भाई हम लोग पैसे कम लेते हैं. ऑब्वियसली यहाँ पे जो लेबर है वो सस्ती है तो आपके पास काम आता है. बट फ्रॉम द Gen Z's perspective, I think pay should be another thing that they should be compensated well enough for that as well. So great. I was thinking to talk about money, लेकिन इन्होंने बात की. So indeed that's a very important factor. यहाँ पे दो चीज़ें हैं. वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जो बंदा स्विच कर रहा है, सो देयर आर टू थिंग्स. या तो वो किसी और कंपनी में जा रहा है या वो हायर एजुकेशन के लिए जा रहा है. सो इफ़ दैट्स इन द फर्स्ट केस द कंपनी नीड्स टू अंडरस्टैंड कि मेरी क्या डिसएडवांटेजेस है कि द एम्प्लॉयज़ आर लीविंग, और या वो स्विच करना चाह रहे हैं. सो वी नीड टू वर्क ऑन दैट. वो फिर कंपनी आइडेंटिफाई कर सकती है. दैट कैन बी फ्लेक्सिबल आवर्स, दैट कैन बी द मनी दैट इज़ प्रोवाइडिंग टू द एम्प्लॉयज़. सेकेंडली ये जो हायर एजुकेशन, आई थिंक द कंपनीज नीड टू अंडरस्टैंड कि ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ऑफ द होल इको सिस्टम, एंड द कंपनीज नीड टू इनकरेज दैट. ये नहीं कि अगर कोई हायर एजुकेशन के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसको डिस्करेज किया जाए. आई थिंक दैट कंपनी इज़ डूइंग इट रॉन्ग. दैट इज़ माई पर्सपेक्टिव. जो दोनों पॉइंट्स डिस्कस हुए हैं, मनी एंड वर्क फ्रॉम होम एंड फ्लेक्सिबल टाइमिंग, आई थिंक दैट इज़ अ पेन पॉइंट ऑफ Gen Z राइट नाउ. तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दोनों. ये अंडरस्टैंडेबल बात है कि US मार्केट या हम किसी बाहर के मार्केट को compete करके वो सैलरीज नहीं दे सकते, पर फिर भी जो फाइनेंशियल बेनिफिट होता है दैट मोटिवेट्स एवरीवन. तो उसको बढ़ा के एम्प्लॉयज़ को खुश किया जा सकता है बिल्कुल. और फ्लेक्सिबल टाइमिंग इफ़ उनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग के दौरान भी अंदाज़ा हो रहा है कि परफॉर्मेंस इफेक्ट नहीं हो रही, तो Gen Z प्रेफर रात को काम करना. पूरी रात भी वो काम करके आपको डेडलाइन मीट कर सकते हैं. तो आई थिंक टाइम जो है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए. सेकेंडली इफ़ यू अगर कोई प्रोजेक्ट इस तरह का रिसीव हो रहा है आपके हेड को, तो हायरार्की मस्ट बी फॉलोड, लेकिन सारे इंजीनियर्स के साथ डिस्कशन होनी चाहिए कि क्या हमारी टीम में एक्सपर्टीज़ मौजूद है कि हम ये कर सकते हैं. अगर नहीं तो पहले इंजीनियर्स को वो वाली ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए, फिर व्हेन दे आर रेडी तो फिर जस्ट टेक द प्रोजेक्ट और फिर वो उस पर काम स्टार्ट करें. तब तक चाहे प्रोजेक्ट चला जाए, नया प्रोजेक्ट आ जाएगा. बट जो प्रोडक्टिविटी है वो आपकी टीम की ज़रूर इम्प्रूव होगी, उनकी लर्निंग ज़रूर कुछ होगी. This is where I disagree, because getting projects inside Pakistan, especially in the semiconductor industry, is one painful job. I mean, this whole scenario is happening to basically make that happen. So it's okay. Agree to disagree. This is beyond the hat. Har koi be bold, be brave. Let's address some questions from the audience. Anybody from audience? Oh, sir. वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन. मेरा सवाल ये है कि आपने देखा कि बड़ा नेसेंट हमारा इकोसिस्टम है, तो प्रोडक्ट कंपनीज में कुछ स्टेबिलिटी चाहिए होती है टू डू समथिंग मीनिंगफुल. तो Gen Z जो ये कमिटमेंट है, अब कुछ कंपनीज ने 2 साल की कमिटमेंट मांगते हैं एट द टाइम ऑफ हायरिंग. Gen Z इसको किस तरह देखती है? मुझे जवाब पता है कि Gen Z इसको अच्छा नहीं देखती, मगर फिर आपके पास सोल्यूशन क्या है इसका कि प्रोडक्ट कंपनीज कैसे वो स्टेबिलिटी हासिल करें कि वो कुछ अपने इन्वेस्टर्स को और अपने जो कस्टमर्स हैं उनको कुछ मीनिंगफुल डिलीवर कर सकें. बिकॉज सेमीकंडक्टर में एक जो डिज़ाइन साइकिल है, वी ऑल नो, 1.5 ईयर 2 ईयर्स तक होती है. तो गिव योर कमेंट्स अबाउट दिस कमिटमेंट थिंग प्लीज. Who wants to take this question? सो एक चीज़ तो ये है कि Gen Z के अंदर जो मैं 2 टीम्स को अब तक लीड कर चुका हूँ, ज़्यादातर उसमें Gen Z थे. एक चीज़ जो मैंने नोट किया है वो ये देखा है कि अटेंशन स्पैन Gen Z का उतना नहीं. आप 2 साल की अगर बात करते हैं तो 2 साल के अंदर अगर एक मोनोटनस रूटीन से वो एक ही चीज़ के ऊपर काम करें तो दे वोंट स्टे देयर. उनको आपको कोई ना कोई नया चैलेंज, कोई ना कोई नई चीज़ देनी पड़ती है, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि भाई आप उनको कॉम्पनसेट करें या नहीं करें, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. एक ये चीज़ है जिसके अंदर अगर
ऐसा मीनिंगफुल काम है जिसमें वो सीख भी रहे हैं, लर्निंग भी है, और उसके अलावा वो अपने जिस करियर प्रोग्रेशन की तरफ वो देख रहे हैं अपने आप को जाते हो वो भी अचीव कर रहे हैं। तो आई थिंक वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको देखा जा सकता है। अगर एक मोनोटोनस रूटीन के अंदर वो काम कर रहे हैं तो बहुत जल्दी उकता जाते हैं, उनका अटेंशन स्पैन कम ही है। हेलो, क्योंकि मैं बेसिकली दूसरी साइड पे हूँ, एम्प्लॉयर वाली साइड के ऊपर, तो जब हमारे पास सीवीज़ आ रही होती हैं उन कैंडिडेट्स की, तो बहुत फास्ट स्विचिंग जो है ना वो होती है, और वो जैसी बात है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो फिर जैसे रिलायबल या ट्रस्ट वर्दी वटावर जो भी है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पूछना चाहूँगा कि जेंजी उस फैक्टर को कैसे टेक केयर कर रही होती है कि अगर फास्ट स्विचिंग वगैरह वो कर रहे होंगे तो वो उनके कैरियर के लिए अच्छा नहीं होगा। क्या कंसिडरेशन? अगर ये क्वेश्चन मैं सर हमारे पास जो एक ओल्ड आपने जो बात की, आई मीन दिस इज़ व्हाट इज़ द नॉर्म इन इंडस्ट्री के, एक बंदे ने अगर लेट्स से कि रैपिड स्विचिंग्स की हैं तो ही इज़ अ डिसलॉयल पर्सन और ही इज़, आई मीन वी शुड प्रोब फर्दर, आई मीन दिस इज़ व्हाट द इंटरव्यूज आर फॉर, राइट? वी कैन आस्क देम व्हाट वर द रीजंस दैट मोटिवेट यू टू स्विच देम, बिकॉज आई मीन switching a job is not an easy task, especially if the job is good, it is paying good. I mean, if the person is switching a lot of jobs, there may be underlying different reasons, maybe the culture, maybe the behavior of the managers or colleagues or different things, maybe it was the pay gap or something like that. So I mean, if there is a lot of switching and the profile itself is good, I mean the experience is good, the qualifications are good, I mean you should probe further questions, what were the reasons that motivated you to switch? I mean, we should not just assume that it was a disloyal person from the start. I mean that should be the breaking point of interview, right? तो ये बेटर यही है कि उसको इंटरव्यू में बुला के उसका जो स्विचिंग पैटर्न है वो एनालाइज किया जाए कि भाई वो क्यों स्विच करता आ रहा है, तो उसकी बेस पे एनालाइज बिल्कुल किया जा सकता है कि वो वाकई उसकी वजह से था या वाकई एम्प्लॉयर की वजह से था। तो एम्प्लॉयर की वजह से ही होगा। ओके, थैंक यू, अ नाइस कैंडिड डिस्कशन। तो जैसे आप सब लोग ने जो बातें की वो अभी जो इमीडिएट प्रॉब्लम्स होती हैं हायरिंग पे और स्विचिंग पे उस पर, लेकिन जो हम यहाँ बैठे हुए हैं तो मेरा ख्याल है इसके अंदर कुछ लोगों की पिछले 2 दहाइयों की 2 decades ऑफ वर्क है। तो डॉक्टर राशिद हैं, डॉक्टर हमाद हैं, यासिर साहब हैं, बिलाल साहब, ये सब। तो क्या आप लोग या आप में से कोई ऐसा है जो ये सोचता है कि यार ये एक इंस्पिरेशन है, इस बंदे ने यार टाइम लगाया है, आई वॉन्ट टू बी लाइक दैट? या इन योर टर्म्स अगर आई से कि द डूड हैज़ रिज, ही इज़ अ टोटल W नॉट अ मिड, so does any one of you or do you know anyone who has been inspired by these wonderful gentlemen? अच्छा, इसका मैं आंसर देता हूँ। एक कॉलीग था जो कि रिज़ाइन कर रहा था, उससे मैंने एक क्वेश्चन किया था कि हमारे पास भी काफ़ी सारे CEOs ऐसे हैं, सीनियर पोजीशंस पे लोग ऐसे हैं जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर काफ़ी कुछ किया। उसका आगे से जवाब ये था, पहले पाकिस्तान से बाहर गए हैं और फिर वापस पाकिस्तान में आके कुछ किया। So that's exactly. Yeah. Sir, secondly, the people sitting at the front and the back row, I mean, those are the exceptional people of their generation, right? We are talking about the general case here. So, yes, their vision should be there. So, vision should be there, but not everyone would be able to go for that vision. Some of us have to lead simple lives and everything. But you are right, someone has to lead the vision, and the rest of us have to deal with the realities. Okay, so I have a comment. There is a lot of discussion about job switching. So there is one comment and one suggestion for the Gen Z, and I would also like to hear the response from your side. So the comment is कि यहाँ पे employees भी हैं, prospective employees भी हैं, ये students हैं, and hopefully both very soon they will be in their professional career, और employers भी हैं। सो वी सी के जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के दरमियान जो एक रिलेशनशिप है, इट इज़ बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट। सो इट्स प्रीटी मच क्लियर कि जब भी कोई ज्वाइन करता है नया एम्प्लॉई तो देयर इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। सो मेरे ख्याल में तो ना एम्प्लॉयर्स को माइंड करना चाहिए और ना ही एम्प्लॉई को बहुत ज़्यादा वरीड होना चाहिए रिगार्डिंग जॉब स्विचिंग, एज लॉन्ग एज इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। तो दिस इज़ वन कॉमेंट, एंड आई थिंक इट शुड बी फेयर एंड ट्रांसपेरेंट। दिस इज़ वन थिंग। अच्छा, सेकेंडली जो आप यहाँ पे हमने बात की कि जी टाइमिंग्स फ्लेक्सिबल होनी चाहिए और जेन जी इज़ वेरी मच
like touchy about the timings, flexibility. इस पे मेरी सजेशन ये है कि हमें जो ग्लोबली नॉर्म्स हैं लाइक अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज, जो एक हेल्दी रूटीन है which is not only for your physical health but for the mental health and also to have a good sleep count. So इसको थोड़ा सा think about करें. I hope I'm not like कोई ऐसा comment नहीं मैं कर रहा कि जिससे कि Gen Z जो है वो थोड़ा सा फील हो एडवाइस कर रहे हो. वो ये है कि थोड़ा सा मतलब माइंड सेट ना Gen Z को भी चेंज करने की ज़रूरत है. एटलीस्ट आप सुने तो सही, ठीक है. जिस तरह भी सर ने बात की, डॉक्टर हाशिम इज हियर, के यानी अब इवन वी आर वरीड कि यार आप लोगों को लगता है कि यहाँ पे कोई ऐसे सीनियर्स हैं जिनसे कि देख के आप मोटिवेशन लें. सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ आवर वरीज और फियर कि दोज हु हैव सर्व्ड फॉर दिस नेशन, जिन्होंने कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ अगर वो वेस्ट में होते, बाहर होते, और वो यानी वो छोड़ के यहाँ पे आए, ठीक है, और उनका पैशन था, ठीक है, और आज हम जहाँ पे हैं देयर इज़ नो डाउट कि इन प्रॉब्लम्स की बहुत सी रीजंस हैं, लेकिन वट एवर वी हैव अचीव्ड और वी आर ट्राइंग टू अचीव, तो ये इन लोगों की ज़ाहिर है एफर्ट्स हैं, इनकी डेडिकेशन है, लॉयल्टी है. सो व्हाट्स अबाउट चेंजिंग योर माइंड सेट? आई वुड लाइक टू हेयर फ्रॉम यू. थैंक यू. We can have one last question. We have just 2 minutes left. I just have a comment. I think any good company would always cater for the career growth of its employees. If you don't give them a career growth path in terms of their higher education, technical skills development, and pay rise, recognizing their good work, I think Gen Z or any generation will leave. And having everyone to visit abroad on a learning, master's or PhD, or skills stunt is always good for the company. And finally, the company should always have a career path where they accept their ex-employees if they have left in good arrangement for a higher education or for a work experience abroad. I think that could be a good solution to this. Thank you. Sir, in response to the question from the back, all of your points, early to bed, early to rise, and the points about the legal contracts are valid. And just one thing about early to bed and early to rise, most of us like to work remotely, and the US job market opens at 10 p.m. so not really much of a choice. So we have to stay awake there. And about the legal contract, I mean, as long as the terms of the contract are clear, I mean, everything is clear, everything is fair. But the problem comes when the human element enters that contract. Once a person submits his or her resignation or the intent of resignation, the behavior of the immediate supervisor changes. I mean, this is a common knowledge, and that is exactly why people like to hide their future aspirations and goals and switching plans right before they are finalized and they have something clear in hand. But if they inform their supervisor from the start, the behavior typically changes, and that is the human element that basically discourages this kind of open discussion when terminating a legal contract, because no one likes to end the contract on bad terms. So I mean, that is the reason there. Okay, thank you so much for the panelists. Our time is over. Thank you. And thank you so much for the audience to have some to like this conversation actually and to have some good questions.